نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور اس کی توفیق خاص سے ہم اس کے حضور حاضر ہیں. باری تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج ہمارا موضوع ہے استقبال رمضان کے حوالے سے روزہ انسانی صحت کی شدید ضرورت. باری تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس آیہ کریمہ میں کلمات نص ہر مسلمان کے لیے قابل توجہ اور قابل غور ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے. روزے کا عمل تمہارے لیے زندگی میں فرض اور لازم ٹھہرا دیا گیا ہے. باری تعالیٰ نے انسانی زندگی میں ہر ذی شعور، ہر عاقل، ہر بالغ انسان و مسلمان پر اپنے حکم صوم کو اور حکم صلاۃ کو اور حکم صیام کو فرض ٹھہرایا ہے، اور انسان پر کسی بھی کام کو فرض قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ ہی کو حاصل ہے. اس لیے کہ وہ انسان کا خالق بھی ہے، وہ اس کا مالک بھی ہے، وہ اس کا معبود حقیقی بھی ہے. اور اسی رب نے اس انسان کو عدم کے پردوں سے وجود کی نعمت عطا کی، اور اس انسان کا وجود اپنے رب کے وجود کی اور اس کی رحمت کے باعث عطا ہی عطا ہے. اس کا وجود اس کے وجود پر منحصر ہے جس کے وجود سے کل کائنات کا وجود ہے، اور ہر خلق کا وجود اسی کے وجود کا مرہون منت ہے. اس بنا پر کتب علیکم الصیام کے کلمات ہمیں اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ روزے کا عمل فرض ہونے کی
وجہ سے کسی بھی اعتبار سے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی انسان اپنے نفس کی خواہش کی بنا پر روزے کے عمل کو چھوڑ نہیں سکتا، اس سے لا تعلق نہیں ہو سکتا، اور اس کو اپنی زندگی میں وہ اختیار کرنے سے پیچھے نہیں رہ سکتا، سوائے ان صورتوں کے کہ جس میں باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس فرض کو بعد ازاں قضا کرنے کی اجازت دی ہے، یا روزہ نہ رکھنے کی صورت میں فدیۃ الطعام دینے کی اجازت دی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس آیہ کریمہ میں کتب علیکم الصیام کے کلمات نے اس حقیقت کو ظاہر کر دیا ہے کہ روزے کا عمل فرض ہے، روزے کا عمل فرض ہے، اور فرض عمل معاشرے کے ہر فرد پر لازم ہوا کرتا ہے۔ جس فرض کو کسی حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا، روزہ وہ فرض عمل ہے، اور جب اس کو ہر شخص اختیار کر لیتا ہے تو معاشرہ صالح ہو جاتا ہے، اور جس کا نتیجہ خیر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور فرض پر عمل کرنے والے افراد معاشرہ ہی کے ذریعے مجموعی انسانی معاشرہ عمل صالح پر قائم ہونا والا بن جاتا ہے، اور اس معاشرے کی بنیادوں میں لعلکم تتقون، جو روزے کی فرضیت کا مقصد ہے، کہ قوت معاشرے کے اندر انسانی وجودوں میں سرایت کر جاتی ہے، اور اس معاشرے کا ہر فرد خود کو تقویٰ کے زیور سے آراستہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے قول میں بھی پھر لعلکم تتقون کی بہاریں ہوتی ہیں، اس کے فعل میں بھی تقویٰ کا سرور اور نظارے ہوتے ہیں، اور اس کے حال و خلق میں بھی تقویٰ ہی تقویٰ نظر آتا ہے، اور یہی تقویٰ انسان کی زندگی کو بناتا بھی ہے، انسان کی شخصیت کو سنوارتا بھی ہے، اور اس کی آخرت کو بھی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اور یہی تقویٰ ہی انسان سے حقوق العباد کی ادائیگی کا مسلسل تقاضا بھی کرتا ہے، اور یہی تقویٰ حقوق اللہ پر لازمی ہر انسان کو کاربند رہنے کا سب کے حیات بھی دیتا ہے، شعور بھی دیتا ہے، رغبت بھی دیتا ہے، اور اس کے لیے قوت بھی دیتا ہے، اور یہی تقویٰ ہی انسان کو صالح الاعمال بناتا ہے، صالح الاقوال بناتا ہے، اور صالح الاخلاق بناتا ہے۔ اور یہ ساری صالحیت جو اعمال کے ذریعے سے آتی ہے، اقوال کے ذریعے سے آتی ہے، اخلاق کے ذریعے سے آتی ہے، وہ عبادات اسلامیہ پر پابندی اور مواظبت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے صوم پر عمل کرنے والا وہ صاحب خلق ہو جاتا ہے، عمل میں سعادت مند ہو جاتا ہے، قول میں قول احسن کو اختیار کرنے والا ہو جاتا ہے، اور یہی تقویٰ اس کی ذات و شخصیت کی پہچان بن جاتا ہے، اور یہی تقویٰ ہی بندے کو اللہ کی بندگی کی معراج پر لے جاتا ہے، اور زندگی میں یہی تقویٰ ہی ہمیں مثالی فوز و فلاح سے ہمکنار کرتا ہے۔ روزے کے عمل کو ترک کرنے والا خود کو اعلیٰ انسانیت کے ماحول سے محروم کر دیتا ہے، اپنی ذات میں اعلیٰ انسانیت کے وصف کو
परवान चढ़ने से खुद को मादूम और महरूम कर देता है, और यूं वो लोगों की नजरों में भी जो तकवा से खाली होता है वो नापसंदीदा हो जाता है। इसलिए नापसंदीदा होता है कि उसके किरदार में, उसके अमल में, उसके कौल में, उसके खुल्क में वो तकवा की बहार और खुशबू नजर नहीं आती, और फिर वो रब की बारगाह में भी रब के नाफरमान बंदों में, मासियतकारों में, गुनाहगारों में शुमार होने लगता है। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, कुरान रोज़ा रखने के अमल की ताकीद मजीद करते हुए दूसरे मकाम पर बयान करता है। सूरह अल बकरा ही की आयत नंबर 185 में इरशाद फरमाया, फमन शाहिदा मिनकुमुश शहरा फल यसुम हो, फरमाया कि जो शख्स भी तुम में से मुसलमान और मोमिन इस महीने रमजान को, रमजान और मुबारक को अपनी जिंदगी में पाले तो उसको चाहिए वो इस रमजान के रोजे रखे। अब ये कुरान हकीम का हुक्म सरी इज्तिमाई सूरत, जिसका हम पहले कुतिबा अलैकुमुस्सियाम तज़किरा कर चुके, उसके बाद हुक्म सौम इनफरादी जिंदगी में भी हमें मुतवज्जे करता है। और पहली आयत में कलिमात आयत कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोजा रखने के इज्तिमाई अमल का फर्ज ऐन की हद तक तकमील का तकाजा कर रहे थे कि पूरे माशरे पर, सब लोगों पर रोजा फर्ज कर दिया गया है। और जबकि इसी दूसरी आया करीमा में फमन शाहिदा मिनकुमुश शहरा फल यसुम हो के कलिमात इनफरादी तौर पर, शख्सी तौर पर, तन तनहा इंसान की जात के अंदर रोजे के अमल को इख्तियार करने की उसे तरगीब दे रहे हैं और इंसान को मुतवज्जे कर रहे हैं कि उस रोजे के अमल को अपनी जिंदगी में लाजमी तौर पर इख्तियार करे। अब ये आया करीमा एलानिया हर मुसलमान और हर मोमिन को अल्लाह की तरफ से दावत पे सौम दे रही है कि रोजे को हर सूरत में अपनी जिंदगी में इख्तियार करो। इस अमल की बहारें तुम्हारे वजूद में लाजमी तौर पर दिखाई दे। जिसकी जिंदगी में ये नेमते सियाम आ जाए, वो शख्स इस नेमते सौम से खुद को महरूम रख कर अल्लाह की नेमतों से भी खुद को महरूम कर देता है। और जो शख्स इस नेमत सौम को अपना लेता है वो अल्लाह की नेमतों से खुद को मुज़य्यन करता है, और जो इस नेमत सौम से हटता है वो जिंदगी की नेमतों से और अल्लाह की रहमतों से हट जाता है। रोजा जान बूझ कर न रखना और रोजे का इनकार करना इंसान को कुफ्र की वादी में ले जाता है, और रोजे के अमल से एहराज करना इंसान को फासिक बना देता है, गुनाहगार बना देता है, और अल्लाह के नापसंदीदा बंदों में उसको शामिल कर देता है। रोजा रखने का अमल इंसान को अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनाता है, अल्लाह का महबूब बंदा बना देता है, और बंदे का रोजा रखना खुद को अल्लाह की महबूबियत में लाना है, अल्लाह के मुकर्रब बंदों में खुद को शुमार कराना है, और बंदे का रोजा तर्क करना खुद को अल्लाह के गजब की दावत देना है, अल्लाह के इताब की दावत देना है, और अपने वजूद को अल्लाह की रहमतों से और उसकी नुसरतों से और उसकी करम नवाजियों से महरूम करना है। ये सौदा अब इंसान ने अपने अमल की दुनिया में खुद ही करना है। रोजा रख कर ये अमल अपना कर वो अल्लाह की रहमतों को अपने वजूद के जरिए उनका महबत बना लेता है, और रोजा न रख कर और रोजे से दूर होकर वो खुद को अल्लाह की करम नवाजियों से महरूम कर लेता है और बदबख्ती की राह पर चल पड़ता है। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, रोजा न रखना इंसान को बदनसीब बनाता है,
بدबख्त बनाता है और अल्लाह की रहमतों से महरूम करता है। रोजा रखना इंसान को खुशबख्त बना देता है, खुश नसीब बना देता है और अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल करता है। हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, फुक़हा कराम, असूलीन, मुज्तहिदीन, आइमा ने बयान किया है कि सौम का अमल मुअक्कद मुक़य्यद है और मुअक्कद बिल कैद है। रमजान का रोजा सारे साल में सिर्फ रमजान के महीने में ही अदा किया जा सकता है, रखा जा सकता है, और ये रोजा इसी वक्त ही रमजान मुबारक में ही अदा होगा। और इसलिए कि हुक्म सराहतन बारी ताला ने कुरान हकीम में दे दिया है, फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फलयसुम हो, कि तुम्हें जो भी तुम में से जो शख्स भी जिंदगी में रमजान मुबारक के इस महीने को पाए, फलयसुम हो, फलयसुम हो, फलयसुम हो, उसे चाहिए कि इसका रोजा लाजमी तौर पर फर्ज की हद तक उसे लाजमन अपनी जिंदगी में इख्तियार करना है। हालात व वक़ाए की तरफ, हालात की साजगारी और नासाजगारी की तरफ और दीगर माहौल की साजगारी और नासाजगारी, इन सब से बचते हुए इस अमले सौम को अम्रे इलाही समझकर और अम्रे इलाही बितसरी जानकर उसे हर सूरत में इख्तियार करना है। और ये रमज़ान हमारी जिंदगियों में जब आता है तो हमें रोज़े की सूरत में अल्लाह की रहमतों के करीब होने की दावत देता है। और जब इंसान अपनी ज़िंदगी में रोज़े को शहर रमज़ान में पा रहा होता है तो ये वक्त और ये सआत जो होती है, ये रोज़े को इंसान की ज़िंदगी में लाजम कर देती है, फ़र्ज कर देती है। और रोज़ा इसकी ज़िंदगी में फिर जब इस महीने में रखा जाता है तो ये रोज़ेदार को ये अमल अल्लाह के करीब कर देता है और अपने नफ्स की ख्वाहिशों आरजुओं को इंसान छोड़ते हुए अल्लाह की मर्जी पर अपने नफ्स को लगा देता है। और यूं नफ्स की बहुत सारी बुराइयों और नफ्स की शर्मगेजियों और नफ्स की फितना परवरियों और नफ्स की जुल्मकारियों से इंसान खुद को बचा लेता है। तो यूं इंसान अल्लाह के अमर के सामने अपनी ख्वाहिश नफ्स को और अपनी आरज़ुए नफ्स को ताबे कर देता है, उसका फरमाबरदार हो जाता है और अल्लाह के हुक्म पर अपनी ख्वाहिश नफ्स को छोड़ देता है। हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, इस माह सियाम में रोज़ा मुसलसल जो बंदा रख रहा होता है तो वो गोया सही मानों में अल्लाह के हुक्म पर कारबंद हो रहा होता है। और जो लोग रमजान मुबारक के रोजे नहीं रखते हैं उनको ये कुरानी हुक्म रोजे के वक्त और रमजान मुबारक में बार बार अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यही है मुवक्कत बिल क़ैद। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। तो ये अमर तकरार के साथ उनकी तरफ मुतवज्जे हो रहा होता है, ईमान वालों, है ईमान लाने वालों। तो रब गोया अपने बंदों को दावत दे रहा होता है, दावत बिस्सौम, आओ रोजे की तरफ आ जाओ। इसलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये रोजा तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिया गया है। तो गोया खुद बारी ताला अपने बंदों को बार बार पूरे रमजान मुबारक के महीने में और रोजे के वक्त वो बुला रहा होता है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर अमले सौम फर्ज किया गया है। ऐ बंदे, इस दुनियावी जिंदगी में इस हुक्म सौम के क़याम की तरफ आ जा, मेरे हुक्म की बजावरी की तरफ आ जा और नफ्स की बात छोड़ दे, रहमान की बात मान ले, आरज़ू में नफ्स को तर्क कर दे, रज़ाए मौला के सामने
सर तस्लीम में खम कर दे, नफ्स का पुजारी न बन, अपने रब का पुजारी बन और अपने रब की बंदगी करने वाला बन। नफ्स की बात न मान, रब की बात मान। और इस हुक्म के साथ साथ दूसरा हुक्म खुदाबंदी भी बंदे को बार बार मुतवज्जे करता है। फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फल यसुम हो, फमन शाहिदा मिनकुम शहरा, फमन शाहिदा मिनकुम शहरा, जिसने भी अपनी जिंदगी में रमजान को पा लिया है, रोजे वाले महीने को पा लिया है, जिसकी जिंदगी में भी खुशबख्ती से रमजानुल मुबारक आ गया है, अब उसकी जिंदगी में रोजा आ जाए और उसकी जिंदगी अब रोजे के अमल से आशना हो जाए, उसकी जिंदगी में रमजान मुबारक के सारे महीने में रोजे ही रोजे नजर आए और दिखाई दें, वो दिन को रोजा रखे, रात को तरावी की सूरत में अल्लाह का कलाम सुनकर रूह की तकवीयत का सामा करे, दिन को रोजे की सूरत में रूह को कवी करे और रात को तरावी में कलाम इलाही सुनकर रूह को कुव्वत और ताकत फराम करे। ये रमजान मुबारक के दिन के रोजे और रात को सलातुत तरावी का अमल इंसान के जिस्म की रूहानी ग़िज़ा है और इसकी रूह की रहमानी ग़िज़ा है। इसलिए बारी ताला ने हर बंदे को दावत बिद सौम खुद दी है, इनफरादी तौर पर भी हर बंदे को वो रब अपनी बंदगी की तरफ बुला रहा है और रोजे के अमल को लाजमी तौर पर इख्तियार करने की दावत दे रहा है और रब हर बंदे को रोजे की तरफ यूं बुला रहा है, फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फल यसुम हो, फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फल यसुम हो। आ जाओ, आ जाओ, रोजे की तरफ आ जाओ, रोजे की तरफ आ जाओ। गोया वो रब हर बंदे का नाम लेकर अपनी बारगाह से बिल इल्तिजाम मुतवज्जे उसकी तरफ हो रहा होता है और अपनी रहमत और अपनी नुसरत और अपने फजल और अपने करम की तरफ बंदे को बुला रहा होता है। और बाज बंदों के जाहिरी कान अपनी बेखबरी की वजह से, अपनी जहालत की वजह से, अपनी गफलत की बिना पर इस हुक्म रब्बानी को सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। वो दुनिया की आसाइशों में, राहतों में खुद को मुस्तगरक कर देते हैं और रब की नाफरमानियों को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछौना बना लेते हैं। वो इस आवाज पर कान नहीं धरते, इस बिना पर न उस पर अमल कर पाते हैं। नतीजतन वो इस अमल से बेपरवाह हो जाते हैं, रोजे के अमल से लाताल्लुक हो जाते हैं, जिसकी बिना पर वो रब की बेशुमार नेमतों और दायमी जिंदगी के फौजो फला से महरूम हो जाते हैं। इस बिना पर रोजे के अमल की तरगीब देते हुए बारी ताला ने अपने बंदों को बार बार मुतवज्जे किया है कि ये रोजे चंद दिनों के हैं, मगर ये चंद दिनों के रोजे इंसान की सारी जिंदगी को हकीकी जिंदगी बना देते हैं। इसलिए फरमाया कि ये रोजे अगर तुम इनका शुमार करना चाहो, अय्यामम मादूदा फी सूरतिल बकरा, फरमाया ये गिनती के तुम्हारी जिंदगी में पूरे साल में ये चंद गिनती के दिन है, इनको तो अल्लाह की रजा के मुताबिक बसर करने वाले बन जाओ। इसलिए आगे मजीद तरगीब देते हुए इरशाद फरमाया, वअन तसूमू खैरुल लकुम, वअन तसूमू खैरुल लकुम, वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, इन कुंतुम तालमून, और तुम्हारा रोजा रख लेना बंदे तुम्हारे लिए बेहतर है। खैरुल लकुम, खैरुल लकुम, ये रोजे का अमल तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम्हें कुछ समझ आ जाए, अगर तुम्हें कुछ फहम मिल जाए, जिंदगी की हकीकत की कुछ खबर हो जाए, तो रोजा अपने रोजेदार के हक में सरासर पैगाम खैर है। रोजा बंदे के लिए पैगाम फलाह है, रोजा बंदे के लिए पैगाम नजात है, रोजा बंदे के लिए पैगाम सेहत है। और इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे के बेशुमार फवाइद में से एक फायदा जिसका ताल्लुक हर इंसान की सेहत के साथ है, उसके बारे में मुतवज्जे करते हुए इरशाद फरमाया, वसूमू तसहहू और तुसहहू, रवाहु तिबरानी। फरमाया रोजा रखो, रोजे रखो, सेहतमंदी पा जाओगे, तंदुरुस्ती पा जाओगे, जिंदगी में अल्लाह की
नेमतों को पा जाओगे। हाजरीन और नाजरीन ग्रामी कदर, रोजे का अमल जब इंसान इख्तियार करता है, वसूमू व तुसख्खिरू, कि वो नेमतों को अपनी जिंदगी में फरावानी के साथ देखता है। रोजादार के जिस्म में कुव्वत मुदाफत रोजे की वजह से कई गुना बढ़ जाती है। ये कुव्वत मुदाफत आम अफराद की निस्बत ज्यादा होती है और दौरान रोजा अंदरूनी अज़ा की कारकर्दगी बढ़ जाती है, इसलिए कि इनको रोजे की वजह से आराम मिल जाता है। अफ्तारी के वक्त ये तरोताजा और मुस्तैद हो जाते हैं। और बाज बीमारियों का इलाज अतिब्बा ने रोजा रखने के अमल में बताया है। रोजे के जरिए इंसान बसियार खोरी के अमल से खुद को महफूज रखता है, जिसकी बिना पर मैदा और जिगर का अमल दुरुस्त हो जाता है। इसलिए बारी ताला भी अपने बंदों को बार बार मुतवज्जे करता है, वान तुसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून फी सूरतिल बकरा, अगर तुम समझो तुम्हारे हक में यही अच्छा है कि तुम रोजा रखो। हाजरीन और नाजरीन ग्रामी कदर, रोजे से सिर्फ निजाम हजम ही दुरुस्त नहीं होता, बल्कि रोजे के जरिए इंसान का सारा जिस्मानी निजाम दुरुस्त हो जाता है। रोजा जहाँ एक इबादत है, वहाँ इंसान की सेहत की हिफाजत का बहुत बड़ा जरिया और सबब भी है। रोजे के इंसानी जिस्म पर मुस्बत असरात भी मुरत्तब होते हैं और बास ऐसे इंसानी मरीज हैं जो किसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला होते हैं, रोजा रखने से उनके मर्ज में कमी आ जाती है। इसलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर वो अपना अमल बताता है कि चंद दिन के रोजा रखने के जरिए से बारी ताला ने उसको एक मर्ज से मोहलक से बारी ताला ने निजात अता कर दी। इसलिए वो कहता है कि इस्लाम के मानने वालों के लिए रोजा अल्लाह की बारगाह से एक बहुत बड़ी नेमत है। हाज़रीन और नाज़रीन ग्रामी कदर, रोजा इंसान के तमाम जिस्म को तंदुरुस्त रखता है और रोजा इंसान के महदे की बीमारियों से महफूज करता है। रोजा दिल के मरीजों के लिए भी शिफा का बायस है। रोजा रखने से इंसान के ख्यालात में इस्तिराब की कैफियत का खात्मा हो जाता है, जज्बात में इत्दाल और तवाजुन आ जाता है। इंसान की तजर्रुद की जिंदगी रोजे के जरिए बाहुस्नो खूबी गुजरती है। महीने में एक दो बार रोजा रखना सेहत की हिफाजत के लिए इंतहाई मुफीद काम है। रोजे के जरिए ज़हनी और कल्बी सुकून हासिल होता है। जज्बाती इंसानों के लिए रोजा रखना इंतहाई मुफीद अमल है। रोजे के जरिए ख्यालात दुरुस्त होते हैं। रोजा हमें शैतानी वसाविस से भी महफूज करता है और सेहत के लिए फाका भी इंतहाई जरूरी है और लाजमी है। फाके की बेहतरीन सूरत हमारे लिए रोजा है। इस्लामी तालीमात में तज़किया नफ्स का मकाम व मर्तबा रोजे के अमल के जरिए से यकीनी तौर पर इंसान को मुयस्सर आ जाता है। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, वो इंसान जिनके पेट बसियार खोरी की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं और उनके मोटापे को कम करना लाजिम सेहत की हिफाजत के लिए जरूरी हो जाता है। तो इस हवाले से रोजा उनके लिए बहुत ही मुफीद है और इस हवाले से उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हर माह अयामे 20 के 3 रोजे रखने चाहिए, जिनके वजूद फरबा हो जाए, मोटे हो जाए। रोजे का अमल उनके अंदर से जो चर्बी मोटापे की है उसको पिघला देता है। और ये अयामे 20 के रोजे चांद की 13, 14 और 15 को रखे जाते हैं और यही सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रमजान मुबारक में रोजा रखने की वजह से और कम खाना खाने की वजह से मैदा और जिगर के अमराज कम हो जाते हैं। रोजा मुसलमानों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से सालाना एक एनुअल डाइटिंग प्रोग्राम है और इस डाइटिंग प्रोग्राम की वजह से इंसान के अज़ा मजबूत होते चले जाते हैं, दिल तकवीयत पाता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ इलाज बीमारी की अलामात का होता है,
फी नफ्स ही बीमारी का इलाज नहीं होता, हम सिम्टम्स का इलाज कर रहे होते हैं और इससे बीमारी का अंदाजा कर रहे होते हैं। बसा औकात बीमारी वही की वही इंसानी जिस्म में पलती रहती है, मगर इलाज मुसलसल जारी रहता है और अफाका और सेहतमंदी की नेमत मुयस्सर नहीं आती। इसलिए कि हमारे यहाँ इलाज अलामात का है, सिम्टम्स का है, डिजीज का, बीमारी का इलाज नहीं है। रोजा यक वक्त ये सिम्टम्स का, अलामात का और डिजीज मोहल्लक बीमारियों का और तमाम बीमारियों का ये रोजा इलाज भी है। हर इंसान को हर साल कुछ वक्त अपनी जिंदगी का इस तरह जरूर गुजारना चाहिए कि वो डाइटिंग करके अपने निजाम हजम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ अरसे के लिए फारिग रखे, ताकि उसके अंदर मौजूद फासद रतूबात का खात्मा हो जाए और यूं इंसान का निजाम हजम पहले से ज्यादा महफूज हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इसलिए हर इंसान को लाजमी बुनियादों पर डाइटिंग पूरे साल में करनी चाहिए और उसके लिए बेहतरीन अमल हमारे लिए अमले सौम है। असर हाजिर में की खूबसूरत और दिलकश और जा अफरोज और ईमान अफरोज डाइटिंग की जो का प्रोग्राम है और ये एनुअल डाइटिंग, वो उसका नाम रमजानुल मुबारक है। हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, आज के दौर का हर इंसान टेंशन और हाइपर टेंशन में मुब्तला है, जिसका कामिल इलाज और शिफा याबी अल्लाह ने रोजे में रखी है। रोजे के दौरान इंसान के गुर्दों को भी आराम मिलता है और ये गुर्दे किडनीज इंसान के अज़ाए रईसा में से है। रोजे के बायस और रोजे की बरकत से ये सही तौर पर अपनी वर्किंग शुरू कर देते हैं। रोजे की वजह से इंसान के मैदे में तेजाबियत नहीं होती, मैदे के आसाब और रतूबात पैदा करने वाले खलियों को रमजान मुबारक में आराम मिल जाता है, इसलिए कि ये इफ्तार के बाद ज्यादा मौसर तरीके से निजाम हजम के लिए मसरूफ हो जाते हैं। रोजे और दीगर इबादात के नतीजे में हमें सुकून और राहत की नेमत मुयस्सर आती है और इस तस्कीनी कुव्वत की बिना पर हमारे जिस्म की तमाम कदूरतें खत्म हो जाती हैं, गैज़ो गज़ब के आसार कम होने लगते हैं और हम जिस कदर अल्लाह की बारगाह में खुशू व खुजू का इजहार करते हैं और अल्लाह की मर्जी के सामने सरनगू होते हैं, हमारी परेशानियां, हमारी इज़्तिराबी कैफियत खत्म होने लगती हैं और रोजे के बायस इंसान के जिगर को भी इस्तिराहत का, आराम का वक्त मिल जाता है और जिगर लीवर को भी ये आराम सिर्फ और सिर्फ रमजानुल मुबारक में मिलता है। इसलिए कि अगर 1 ग्राम का 10वां हिस्सा भी अगर हम खुराक का अपने जिस्म और मैदा में ले जाएं तो हमारा निजाम हजम सारे का सारा एक खुदकार सिस्टम के मुताबिक काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जिगर भी फौरी तौर पर मसरूफे अमल हो जाता है। हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, हम आज अपनी जिंदगी की गैर मामूली कीमत और मयार मुकर्रर किए हुए हैं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद तिब्बी मुआयने और अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए तरह तरह के जो टेस्ट मुसलसल कराते रहते हैं ताकि अपनी सेहत को अच्छा रख सकें। अगर हमारे जिस्म के अंदरूनी निजाम के एक उज़्व की अगर हर उज़्व की अगर ज़बान होती तो हर उज़्व हमें हमसे यही तकाजा करता, पुकार पुकार कर हमें हर उज़्व जिस्म यही कहता कि मुझे रोजे की सूरत में, सौम की सूरत में कुछ आराम करने दो, सारा साल और हर लम्हा मैं तुम्हारी खिदमत में मुसलसल मामूर रहता हूँ, हर वक्त तुम्हारी खिदमत कर रहा होता हूँ, हर वक्त काम में होता हूँ, मुझे कुछ वक्त आराम दे दो, मुझे कुछ वक्त इस्तिराहत दे दो। रोजा दर हकीकत हमारे इसी अंदरूनी निजाम की इस आवाज़ इस्तिराहत का, इस सदाए आराम की बाज़े गश्त का नाम है। इसलिए इस रोजे को इख्तियार करना अपने जिस्मों में सेहत को महफूज करना है, अपनी जिस्म को बीमारियों से बचाना है, खुद को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखना है। रोजे के जरिए इंसान के गले और खुराक की नाली को भी आराम
मुयस्सर आता है। हमारा जिस्म सारा साल बसियार खोरी की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होता है और हम हर लम्हा हर लहजा पूरा साल हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ पीते रहते हैं, जिसकी वजह से हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। हमारे बेहंगम और अजीबो गरीब मोटापे का इलाज सिर्फ और सिर्फ रोजे के अमल में है। रोजे के जरिए हम अपने वजन को कम कर सकते हैं। रोजा ही हमें वो तरीका बताता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने खाने की मिकदार को कम करते चले जाते हैं और खुद को कलील ताम बनाने की मशक करते चले जाते हैं और इसका खुद को आदी बनाते चले जाते हैं। यूं हमारे जिस्म से ये रोजा मोटापे को दूर करता चला जाता है और इसी तरह हम कम से कम इस मोटापे से रोजे के जरिए से निजात पा रहे होते हैं और ये हमारा जिस्म एक्टिव और फाल हो रहा होता है और रोजे की वजह से हमारे जिस्म में जो मोटापा कायम हो जाता है वो सारे का सारा चर्बी बन जाता है, उसी की वजह से मोटापा होता है। तो ये रोजा उस चर्बी के अमल को पिघला देता है और जिससे हमारे जिस्म का जो फरबापन और हमारे आज़ा का फरबापन ये भी खत्म हो जाता है और ये चर्बी हद इत्दाल से तजावुज रोजे की वजह से नहीं करने पाती। तो रोजा हमारी जिस्म से फाजिल चीजों को खत्म करता चला जाता है। यूं हमारे जिस्म में जो मोटापा जाहिर होता है उससे निजात के लिए रोजा एक बेहतरीन अमल है। रोजे की हालत में जिस्म की चर्बी के ज़खायर गोया मुतहर्रक होते हैं और वो रोजे की वजह से जलना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। यूं इंसानी जिस्म को रोजा तवानाई फराम करता है और सही तौर पर इसको फिट करता है और इसी तरह इंसानी जिस्म की फाजिल चर्बी वो रोजे के अमल के जरिए काम में आने लगती है और जिसकी वजह से इंसान मोटापे से निजात पा जाता है और यही मोटापा हमारी सारी बीमारियों का बायस है। हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, खुलासा कलाम की तरफ आते हुए अर्ज करूं, माहिरीन तिब और जदीद मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स और इल्म जदीद और इल्म साइंस में दिलचस्पी लेने वाले इंसानी जिस्म की हिफाजत और बीमारियों से इसे महफूज करने के लिए नित नए नए तजर्बात करते रहते हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे और तरह तरह के मुशाहदात करते हैं और करते रहेंगे, मगर उनके सारे नजरियात और तजर्बात दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद वसूमू 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 तसहहू तसहहू तसहहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, सेहत की नेमत पा जाओगे। इसी की अमली ताबीर है, इसी की अमली तशरीह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन जवामिउल कलिमात की सिर्फ और सिर्फ सारी तिब और मेडिकल साइंस जो इंसानी सेहत के हिफाजत के लिए काम कर रही है वो इन्हीं की तशरीह है। और आज के दौर में जहां रोजा रखना हमारा मजहबी फरीजा है, वहां हमारी सेहत की हिफाजत के लिए एक एनुअल डाइटिंग प्लान और एक प्रोग्राम भी है। हाज़रीन और नाज़रीन इकराम कदर, रोजा रखने के अमल में खैर ही खैर है, इसलिए कि कुरान ने कहा हुवा खैरुल लकुम अन तसूमू हुवा खैरुल लकुम, कि रोजे के अमल में तुम्हारे लिए खैर ही खैर है। रोजा रखने वाला कभी भी किसी भी हवाले से नुकसान नहीं उठाता। रोजा सरासर इंसान के जिस्मानी अज़ा की सेहत के लिए मुफीद है। रोजा हमारे जिस्म के अज़ा को नफा पहुंचाता है। रोजे के जरिए हमारे मेहते, हमारे जिगर और हमारे दिल और हमारे जिस्म के तमाम अज़ा को नफा और फायदा पहुंचता है। रोजे के जरिए हमारा निजाम इंतजाम और हजम सही तौर पर काम करता है। गर्जे के रोजा हमारे सारे जिस्म को चाको चौबंद और चुस्त मुतहर्रक और सेहतमंद और फाल रखने वाला है। रोजा हमारे लिए रब की बारगाह से रहमत है और उसके फजलो करम का आईनादार है। हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, रोजा हमारे लिए रब की बारगाह से बख्शिशो मग़फ़िरत की खैरात अज़ीमा लाता है
اور دوزخ و جہنم سے انسان کو نجات دیتا ہے، اور انسان کی دنیاوی حیات کے لیے روزہ مسلسل صحت ہی صحت ہے، اور انسان کی اخروی حیات کے لیے بھی روزہ نجات ہی نجات ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی ہر ساعت وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ کی صورت میں ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ خدا کی رحمتیں لوگوں ہمیں آواز دیتی ہیں، خدا کی رحمتیں لوگوں ہمیں آواز دیتی ہیں، دل دامن کو پھیلاؤ رمضان آیا ہے، دل دامن کو پھیلاؤ ماہ رمضان آیا ہے۔ خدا کو راضی کر کے، منور قلب کو کر کے، خدا کو راضی کر کے اور منور قلب کو کر کے سراپا نیک بن جاؤ، سراپا نیک بن جاؤ، ماہ رمضان آیا ہے۔ خدا کے آگے نادم ہو کے کاظم اب گناہوں پر، خدا کے آگے نادم ہو کے کاظم اب گناہوں پر خلوص دل سے جھک جاؤ، خلوص دل سے جھک جاؤ، ماہ رمضان آیا ہے، ماہ رمضان آیا ہے، ماہ رمضان آیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔